You're watching NewsX. I'm Arzu Seth, and you guys are watching this special broadcast on Mahakumbh 2025. Right now, I'm in the Prayagraj and also at the very auspicious site, and this is Sangam Ghat. Would like to show you the visuals also from this particular place, and you can see all the preparations are in full swings. The entire Prayagraj is decked up for the Mahakumbh 2025, and also if we talk about Mahakumbh Mela is a grand assembly of rituals with the bathing ceremony standing as the most significant of them all. And you can see also the ghat in front, the sangam of Ganga, Yamuna and Saraswati. And also if we talk about held at the Trivedi Sangam, millions of pilgrims gathered to partake in this sacred practice, and which is deeply rooted in the belief that the immersely on self in the body and all these sins are get cleaned. And also today we have some guests with us to talk about the rituals, the importance that these practices hold the Mahakumbh of 2025. Mahanji, how important this Mahakumbh is going to for the people of Prayagraj and for the country? Firstly, Om Namo Narayanai to all of you. Mahakumbh, as you all are aware, that it comes after 12 years. And this is a Purn Mahakumbh. And this is like for each and every sannyasi and all the grastas who are residing all over, who are the Sanatanis basically. It's a most auspicious occasion for all of us because these are the days when we can have those Amrit drops which came, which we got on the four places of our Indian land. So in all those four places, the Prayagraj is the supreme one because we have a Triveni Sangam over here, which is the auspicious Ma Ganga, Ma Yamuna and Ma Saraswati. So the kumbh is like all the sannyasis and each and everybody, we are all awaiting for the day to begin with it, which will start on Makar Sankranti, 14th of January with the first Snana. And as you are all aware that this time we are not calling this as a Shahi Snan. Our Akhada, Shri Panchayati Akhada Mahanirvani, has renamed the Shahi Snan as a Amrit Snan. So we have deleted the word Shahi from our list, and this time it's going to be a Amrit Snan. So the first Amrit Snan starts on 14th of January, that is the Makar Sankranti. Then the second one is on 29th of January, that is Moni Amavasya. And the third one is on 3rd of February, and that is Basant Panchami. So that is the main scenario of Mahakumbh this time. And I think this time what I am feeling is the kumbh is like never seen before. So this is going to be historic this time. Madhvananji, we also want to understand, as you run, you are the chief of the Akhada also, Panchayati Akhada. No, I'm not the chief of the. I'm just Leading. I'm just a son of the Shri Panchayati Akhada Mahanirvani. Our Mahant ji, Shri Ravindra Puri ji Maharaj. It's a head office of Shri Panchayati Akhada Mahanirvani in Prayagraj, Daraganj, and Mahant Shri Yamnapuri ji Maharaj ji is the leading personality this time for this Akhada. We all are working on his instructions, and Mahant Shri Ravindra Puri ji Maharaj from Shri Panchayati Akhada Mahanirvani Haridwar office, they are our main lead people. I want to understand the pre-rituals before the Mahakumbh, as the Akhadas are, holding these pre-rituals. Yeah. The pre-rituals are firstly like tomorrow morning we are having our Bhumi Pujan of Shri Panchayati Akhada Mahanirvani at our Chavni. That way the Bhumi Pujan of Shri Akhada Niranjani will go on, then the Shri Juna Akhada, all the Akhadas will have their Bhumi Pujan. Then Dhwaj Rohan will be taking place. Dharm Dhwaj will be
like in our Chhavni, then the time comes when we'll have our Peshwai Yatra. So that dates are different for each and every akhada. Our akhada, Shri Panchayati Akhada Mahanirvani, will have their Peshwai Yatra on 2nd of January. So all What is the the importance of that? yeah, it's very rare when you have a darshanas of all Sri Mahantas, all the Mahamandleshwaras, all the Acharya Ganas. So on 2nd of January, all the Mahamandleshwar, all the our Acharya ji from Shri Panchayati Akhada Mahanirvani, Acharya Param Pujya Pad Shri Swami Vishokanand ji Maharaj ji will be there. Then the Acharya ji from Atal Akhada will be there, and all the Mandaleshwars and our Panch, Ramta Panch, and our all the Shri Mahantas, all the administrative body, all our sadhu saints, each and everybody will participate in that. So it's a very rare view when on one place, one time, you have a darshanas of all the siddhas in between you. It's a very auspicious, it's very pious, and people like us, we think that we are very uh, like it's a great moment for us. Surely. So it's a great moment and it's an auspicious moment because the Mahan, the sons from all around the countries are coming to Prayagraj to celebrate the Mahakumbh of 2025. Also, we like to grow across the Kavi here to put some entertainment elements to this Mahakumbh coverage. Kavi ji, क्या सुनाएंगे आज आप प्रयागराज पे महाकुंभ पे क्या लिखा हुआ है? पहले तो मैं आप सबको नमन करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। यह प्रयाग का महान गौरवशाली और गौरवशाली परंपराओं को एक रूप में मानने वाला बहुत बड़ा पर्व है जिसे हम लोग महाकुंभ नाम देते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में उद्धृत किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यह ऐसा पौराणिक स्थान है, ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पे देव दनुज नर नारी किन्नर सब कुछ, सारे देवता, सारे भगवान यहाँ पे आते हैं केवल माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। इस अवसर पर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। महाकुंभ को ही लेकर लिखा है कि आओ हम सभी कुंभ मेला चलें, गंगा मैया में डुबकी लगाने चलें। आओ हम सभी कुंभ मेला चलें, गंगा मैया में डुबकी लगाने चलें। गंगा मैया को करता हूँ सादर नमन, मेरे भावों से निकले मेरे श्रद्धा सुमन। आ जाओ कि मेला लगा है यहाँ, अपने पापों की गठरी उठाते चलें, अपने पापों की गठरी उठाते चलें। हर किसी की जुबां पे राम ही राम है, हर किसी की जुबां पे राम ही राम है। गंगा मैया के तट पर ही आराम है, पाप जो भी किया वो उतर जाएगा। आओ थोड़ा सा धूनी रमाते चलें, आओ थोड़ा सा धूनी रमाते चलें। यहाँ होती है हर रोज भागवत कथा, यज्ञ होता है होती रामायण कथा। यहाँ होती है हर रोज भागवत कथा, यज्ञ होता है होती रामायण कथा। आ जाओ कि जीवन सुधर जाएगा, जरा सत्संग संतों का करते चलें, जरा सत्संग संतों का करते चलें। आओ कुंभ चले। आओ कुंभ चलें। So you have also given invitation to the viewers that to come and visit Prayagraj, to visit Mahakumbh. सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत साल प्रयागराज में आपने गुजारे हैं, इस बार का महाकुंभ कितना अलग रहने वाला है? अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था किया है, जो आज ही हम पेपर पढ़ रहे थे तो दिया था कि 21,000 करोड़ फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपने बनारस का पान भी खा लिया है प्रयागराज में? नहीं, प्रयागराज का ही पान है। हमारे परिचित हैं, वो बनारस से कार से आते हैं, पान खाएंगे और 2 जोड़ा पान बंधवा के लेके बनारस जाते हैं। उनको इलाहाबाद का पान पसंद है। हाँ, और नाम है कि बनारस का बिहार बनारसी पान। चलिए, हाँ, महाकुंभ पे आप बात कर रहे थे, बताइए।
तो महाकुंभ का ये है कि बड़ा अच्छा इंतजाम हो रहा है और भगवान चाहेंगे, गंगा मैया की कृपा होगी तो मेला बड़ा सकुशल संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल। तो people are expecting this time it is going to be a very grand celebration. Sir, how did you see, आप कैसे देखते हैं इस बार के महाकुंभ को? कितनी तैयारी आप लोगों ने की हुई है प्रयागराज में? देखिए, इस प्रसन्नता को जो है मन से या वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति फल की गुणवत्ता को नहीं व्यक्त कर सकता है, उतने हम प्रफुल्लित, उत्साहित, आनंदित हैं। इसके लिए तो हम पूरी धरती के लोगों को आमंत्रित करते हैं, आओ हम सब मिल चलें, प्रयाग कुंभ अमृत फल चखें। हम सबको आमंत्रित करते हैं। हम इतने आनंदित, इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो देवी देवताओं के समय में क्या आनंद रहा होगा, वो कल्पना से परे है। प्रयागराज के सभी व्यक्तियों के अंदर एक कवि है, मुझे नजर आ रहा है। प्रयागराज जो है साहित्यिक, सांस्कृतिक, सदैव से राजनीतिक राजधानी रही है। देश की जितने बड़े बड़े क्रांतियां हुई है, जो भी हुआ है वो प्रयागराज से ही हुआ है। यहाँ से ही लोगों को जो है प्रेरणा मिली है और उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। और उस नई दिशा में आप 1975 की जो है क्रांति हम उसको कहेंगे, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी को कहेंगे कि प्रयागराज की दिखाई हुई दिशा से ही उन्होंने एक भारत में एक नया परिवर्तन आपातकाल ला के लगाया था। जो हम जानना चाहें कि हर बार के कुंभ से इस बार आप लोग क्या अलग देख रहे हैं? क्या कुछ अलग तैयारियां चल रही हैं? हम देख रहे हैं जगह जगह टेंट लगाए जा रहे हैं, और क्या कुछ अलग आप देखने को मिल रहा है इस बार? इस बार हमारे कुंभ का इतना व्यापक प्रचार है, पूरे विश्व में इतना व्यापक प्रचार है कि उनकी व्यवस्था के लिए सनातन धर्म पे किसी भी प्रकार का आक्षेप न आने पावे, उसके लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार युद्ध स्तर पे लगी हुई है कि जिस प्रकार से वो अपने देश में सुविधा चाहते थे, उस प्रकार से हम अपने एक सीमित क्षेत्र में उनको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि सारी दुनिया में एक धर्म के बहुतायत जो है राष्ट्र हैं, वो इतनी दिव्य और भव्य व्यवस्था नहीं कर पाते। उनके यहाँ किसी न किसी भी प्रकार की घटनाएं होती रहती है। लेकिन हमारे प्रयागराज ऐसा कुंभ है कि जिसमें किसी भी प्रकार के एक पक्षी तक की जो है घटनाएं जो है नहीं मिलती है। इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। सड़कें चौड़ी हो रही है, नदियों को घाट से बनाया जा रहा है। पहले ये बोरे सीमेंट के बोरियों से भर के बनाए जाते थे, लेकिन अब उसी जगह पे पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। आओ कितना आते हो, 140 करोड़ नहीं 140 अरब दे पूरे दुनिया की जनता आ जाए, प्रयागराज उसका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और सकुशल उसको स्नान करके भेजेगी कि वो निकट भविष्य में आने वाले कुंभ और दुकुंभ के लिए जो है पुनः अपनी नई पीढ़ी को तैयार करके सनातन धर्म की शक्ति को दिखावे कि सनातन धर्म में कौन सी वो अदृश्य शक्ति है कि सबको खींचती है, सबको सुरक्षित रखती है। जिस प्रकार से आप एक टीवी को चलाने के लिए रिमोट को इस्तेमाल करते हैं, उसकी शक्ति को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म की ये शक्ति है कि हम सारे को सुरक्षा भी देते हैं, सारे को जो है धर्म की ज्ञान भी देते हैं और उनको आगे प्रगति का रास्ता भी दिखाते हैं। आओ कुंभ चले, आओ हम सब मिल कुंभ को चले। बिल्कुल। सो वी कैन हियर people, the voices on ground, they are very enthusiastic and in fact welcoming every people coming to this place, and they are asking millions of people can come because the Prayagraj is welcoming everyone for the Mahakumbh 2025. सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना उत्साह है आप लोगों को, क्योंकि 12 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है। कितना उत्साह है, क्या कुछ तैयारी आप लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं? सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी व्यवस्था है, केंद्र और राज्य सरकार की, और करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है इस मद में। इस बार तो बजट भी ट्रिपल कर दिया है। 30 पुल बन रहे हैं इस गंगा नदी पे, इसकी व्यवस्था हो रही है, रोडें बन रही हैं और किनारे किनारे रिवर फ्रंट बन रहे हैं। ये व्यवस्था इसकी बड़ी दिव्य है। तो रिवर फ्रंट बन जाएगा तो पर्यटन जो है, जो लोग हैं वो भी बढ़ेगा। हाँ, पर्यटन बढ़ेगा और सरकार का आमदनी हो जाएगी। और आप लोगों की आमदनी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब लोग आते हैं, आप क्या करते हैं? हम तो एडवोकेट हैं। आप एडवोकेट हैं, चलिए आपको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं? आप यही सड़क विभाग से हैं। सड़क विभाग से हैं, तो सड़क बन रही है प्रयागराज? सड़क अच्छी प्रकार से बन रही है। हम तो एक भजन सुनाना चाहते हैं आपको। देखिए, राम जी सबको तारते हैं, उसी पर हमको एक भजन याद आ गई। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार,
तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे ये भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बहुत बहुत शानदार आपने गाना गाया है, बहुत मजा आ गई। ये गाना तो बहुत है। एक मैं कविता भी लिखता हूँ, बहुत है। अब किसके माध्यम से। सड़क ज्यादा अच्छी बनाते हैं कि गीत ज्यादा अच्छा गाते हैं? देखिए, सड़क भी बनाते हैं हम हारमोनियम, हम सामाजिक भी हैं। हाँ, एक 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 भजन पुनः याद आ गई। ये दाता वही एक राम है, हम उन्हीं का, हम निषाद राज हैं। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता। द्वारे पे उफके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपने भव से उबारता। ऐसे दीननाथ को, ऐसे दीननाथ को, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी। Lord Ram is the giver and we all are the takers, we all are the acceptors. Sir, also I want to understand the rituals that you see every time here at the Mahakumbh 2025. महाकुंभ का एक अपना ही महत्व है, क्योंकि प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला साधारण भी लगते हैं, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है, हर प्रत्येक 12 वर्ष में जो है कुंभ लगता है। और कुंभ और अर्ध कुंभ हमारे भारतवर्ष में 4 स्थानों पे लगा करते हैं। लेकिन प्रयाग का एक ऐसा कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, जो कि अपने में अद्वितीय होता है। गंगा जी सारे हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन जितना प्रयागराज में स्वतंत्र होकर के गंगा जी अपना प्रदर्शन, अनुभव, आशीर्वाद, फल देती हैं, शायद ही इतना बड़ा गंगा का क्षेत्र पाट और कहीं मिलता हो, ये असंभव है। तो यहाँ के कुंभ की महत्ता विदेशों में हमारे साधु संतों ने अपने भजनों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से इतना बखान किया है, जो कि उनके बखान की सीमाओं में नहीं बन पा रहा है कि कितना बखान किया जाए। ये अर्ध कुंभ है। यहाँ पर एक समय आता है कि कभी आप अगर यहाँ पर रहें, मौनी अमावस्या, मेन मौनी अमावस्या के पर्व की हम बात करते हैं, मध्य रात्रि को आप गंगा के संगम के पास रहिए, आपको पानी कम दिखाई देगा 12 बजे से पूर्व, लेकिन 12 बजे आपको अचानक ना मालूम कहाँ से पानी कम से कम 2 फीट पानी बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, और सारे तीर्थयात्रियों भक्तों को स्नान कराएगा। और उसके बाद सुबह 3 बजे होते तक वो पानी अपने आप पुनः गंगा जी अपनी लेवल पे आ जाएंगे। इससे बड़ी अर्धकुंभ की महत्ता, कुंभ की महत्ता हमारी क्या हो सकती है। उस जो बढ़े हुए पानी में होता है, उसी में अमृत घुल करके आता है, सारे लोग उसका पान करते हैं। मैजिक इन महाकुंभ। यस यस, दिस इज राइट से 100% ट्रूथ है। कोई भी वर्ड का चैलेंज मैं करता हूँ, आए मेरे साथ, मैं उसको दिखाऊंगा। गंगा जी को बढ़ोतरी दिखाऊंगा, गंगा जी को जो है उतरते और चढ़ते दिखाऊंगा। इसको शाब्दिक शब्दों में यही कहेंगे, उतरते और चढ़ते दिखाऊंगा कि जिस समय गंगा जी अपार प्रफुल्लित होती हैं, अपार आनंदित होती हैं, भक्तों का रेला देखती हैं, तो गंगा जी अपने को स्वयं उठती हैं, स्वयं उठती हैं। और जब वहाँ पर भीड़ कुछ कम हो जाती है तो गंगा जी अपने को नॉर्मल कर लेती है। इससे बड़ा अजूबा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो है। बात करूं तो आप लोग क्योंकि इस क्षण के जो महाकुंभ है 2025 के साक्षी बनने जा रहे हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है?
ज़्यादा महसूस हो रहा है। गर्व की बात है कि प्रयाग में ये महाकुंभ लगने जा रहा है 12 साल बाद। आप लोगों को कितना गर्व हो रहा है क्योंकि महाकुंभ जो है प्रयागराज में हो रहा है? देखिए, जिस हिसाब से हमको ज्ञान है, हमारा ये कहना है कि तीर्थों के ये राजा हैं, ये तीर्थ स्थान नहीं है, ये तीर्थों के राजा हैं। और राजा का जो स्वरूप होता है उसको भगवान का स्वरूप माना गया है, यानी वो राजा नहीं भगवान है साक्षात। तो इसमें कहा गया है कि पग पवित्र तीर्थ गमन, यानी पैर जो है आपका जहाँ खड़ी है, पैर आपका पवित्र है तीर्थों में जाने से। तो ये तीर्थ में नहीं है, आप तीर्थों के राजा के पास खड़ी हैं। उससे भी बड़ा है। हाँ, उससे भी बड़ा है। तो जब आपका पैर पवित्र है तो ऊपर की शरीर तो अपने आप पवित्र हो गई। तो पग पवित्र तीर्थ गमन और कर पवित्र किए दान। दान करने से यहाँ आके लोग दान करते, जैसे हमारे हर्षवर्धन राजा जो थे उन्होंने दान किया। तो दान किए, कर पवित्र किए दान और मुख पवित्र हरि भजन से। यहाँ जो शाम को आरती होती है सीताराम सीताराम करते हैं लोग, मुख पवित्र हो गया। और त्रय लोक के कल्याण, जो कि आपका तीनों लोकों में कल्याण करेगा, यानी आकाश लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार होगी। उस स्थान पे आप खड़ी हैं और हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। Very auspicious place we are standing right now, Mahanji. Also, I want to understand, after performing all these rituals in the Mahakumbh, what profound impact do you see on yourself after performing all these rituals, taking bath in the holy river Ganga and Yamuna and Saraswati? Look, firstly, I would like to ask a question from you. Have you seen the enthusiasm on all of their faces? Yes. Is it a fake or a real? Real, very real. So, I feel very real. so you can just imagine. This is India. This is Sanatan Dharma. This is the real roots which we are holding, and we need to teach our coming generation that this is a dharma which we have to follow, and the happiness which it brings from you, from inside. Now, our elders were sitting behind and they were talking to us, and they were so delighted. You know, this kind of happiness, have you seen in any corporates? Because Everything was coming from heart. Everyone. every single word is coming from heart, and it comes when all the things are real. There's nothing fake going in our life. So this is the enthusiasm. We are living our religion. We are living it. We are cherishing it. We need to, like I have been waiting for this Mahakumbh, since 2021. I was waiting for when the 2025 will come, when I'll go to Sri Prayagraj Ji, when I'll attend the Mahakumbha. But one thing I would like to tell each and everybody coming from India and abroad, all over the world, people are coming to Prayagraj. Lots of followers are coming from, like the people I know. Lots of people are coming from Italy. The people I know, lots of people are coming from Canada, US. I would like to say something to each and everybody, that please, 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 Mahakumbh is not a picnic spot. It's our religion. These are our religious sentiments. Not only the Siddhas are coming to this place, all our deities to whom we worship, Lord Vishnu, Lord Krishna, the Shakti Swarupas, all the deities will be coming to this particular place in this period of time. Yes. So, from each and every corner of this world, please, this is not a picnic spot. Yes. This is our religion. We welcome each and everybody from any religion. We welcome them all to come and be a part of this Mahakumbha, which is very, very, very nicely being organized, and our government is doing like marvelous work. I have never seen all the
all the officers, all the administrative people are helping us so much that we just give them a call, and after 10 to 15 minutes they are there to help us. They are ready to help. They are working all the day, all the night. Thanks a lot to Indian government, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी. I thank heartily to all of them, each and every person, from PM to a person like him who is working on a street. Because each and everybody is that important for the Mahakumbh Mela like this, which has never been seen before in this India. We're expecting like somewhat around 20 crore people So to this come time- here. This time all the records will be broken because this time more than 20 crore people are going to visit the Mahakumbh 2025. With this request, we are wrapping this bulletin. We will be right back tomorrow with more news and updates. Keep watching NewsX.